yourself. Yuktahar viharasya yuktachetasya karmasu yuktasvapnavabodhasya yogo bhavati dukkha. Namo Namah. Welcome all. So just before we start the session, I'll just give a small introduction about Thane School of Yoga and about our sir, Mr. Vijay Madekarji. So let me introduce him. He is the founder member of Thane School of Yoga. He is also an assistant professor at Yoga Mahavidyalaya Baramati. He is a lead examiner with Yoga Certification Board. He has also presented his research papers in IAOC National Conference at Nagpur. So now let me speak few words about Thane School of Yoga. Thane School of Yoga provides professional courses for yoga teachers training course for Indian as well as international students. It has created and taken part in yoga events like 151 Surya Namaskar program, which was recorded in the Limca Book of Records not once but thrice. Thane School of Yoga has also conducted many special lectures, starting with the first lecture that was just recently on psychology with reference to both modern and in perspective of Bhagavad Gita. And after that, there was no looking behind. It was going on and on with two sessions per month. And today we are here with one more session on physiological and psychological effects of Shuddhi Kriyas. So now I hand over to Shifa for further introduction of our guest. Thank you all. Good evening. Welcome, one and all. It gives me a great pleasure in introducing our guest speaker for the evening, Mr. Durga Das Sawant. Mr. Sawant has done his MSc in Physiology from Goa Medical College, Diploma in Yoga, Yoga Therapy, Naturopathy from Yoga Vidya Niketan, Mumbai. He has 32 years of experience in teaching yoga to the masses. He is a senior faculty at Yoga Vidya Niketan for various yoga courses. He has also conducted various corporate yoga sessions. He is vice chairman at Yoga Vidya Niketan and joint secretary IYA Maharashtra chapter. That is, he is also a member of accreditation committee IYA Indian Yoga Association, National Consultative Committee, Skill Ministry, Government of India. Mr. Sawant has written various articles on yoga, diet, and health and has 52 article series to his credit. He has also written a book on natural diet named Nisarga Ahar, published in 4 different languages. He has also he has following award to his credit. Among them, one is Vocational Excellence Award 2008 of Rotary International. Late Vishnu Anna Patil Yoga Bhushan Award 2016 of Vishwakendra Sangli. Yoga Jeevan Gaurav Puraskar 2017 of Yoga Vidya Niketan. He has also been felicitated by Ministry of Health, Maharashtra government for more than 25 years of yoga preaching. So, thank you, sir. A very warm welcome, and I hope everyone is eagerly waiting for our session to start. So, without wasting much time, I would hand over to our guest speaker, Mr. Durga Das Sawant. Sir, you may please start now. And before that, I would request everyone to keep yourself on mute throughout the session so that the disturbance is not caused to all the attendees. Thank you very much. So, over to you, sir. Thank you, Shifaji, and good evening. Namaste. First of all, I would thank uh, Vijay Madhekarji Thank you. on this platform of Thane School of Yoga for delivering me a lecture. Is it okay that if I speak in English or Hindi, what will be preferring? Sir, Hindi and English you can Mix. अच्छा, okay. अच्छा, ठीक है. तो दोस्तों, आप सभी अवगत है कि योग एक जीवन पद्धति है, यानी कि 1 घंटे का 1.5 घंटे का एक काम नहीं है, बल्कि पूरे 24 घंटों में जो हम जी रहे हैं उसमें योग हो सकता है या योग नहीं हो सकता है, बस
इसलिए एक है योग का अपना तत्व ज्ञान है, बड़ा विषय है अर्थात। तो किस दृष्टि से हम जीवन को देखते हैं, ये जो एक तात्विक दृष्टिकोण होता है वो योग का एक अहम हिस्सा है। फिर किस प्रकार का बर्ताव हो, एक योग साधक है, एक सामान्य मूढ़ व्यक्ति है, महर्षि पतंजलि का एक शब्द है मूढ़, तो उसके और इसके बर्ताव में क्या फर्क है, मतलब वो भी हिस्सा हो गया जिसको यम नियम उन्होंने कहा उनके अष्टांग योग में। किस प्रकार का आचार संहिता सामाजिक स्तर पर या वैयक्तिक स्तर पर निभानी चाहिए, उस प्रकार की बात। और फिर उसके तांत्रिक पहलू है, ये तांत्रिक पहलुओं का ज्यादा विस्तार हठ योग ने किया, जैसे आसन, बंध, मुद्रा, क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, इस प्रकार से। महर्षि पतंजलि ने मन का, चित्त का ही ज्यादा विचार किया है कि वही तो, उसी से तो योग जुड़ा हुआ है कि चित्त किस अवस्था में हो तब हम योग से कितने दूर रहेंगे, और धीरे धीरे चित्त के अवस्था में किस प्रकार हम बदल करें, वृत्तियों में बदल हो और आखिर वृत्तियां का नाश हो, चित्त का ही नाश हो, ऐसी अवस्था जिधर मन है नहीं, तब जाके मैं क्या हूं, जिसको कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, पुरुष आत्मा जो भी, जिसको कैवल्य अवस्था कहा गया है, और वही योग का उद्देश्य है। हालांकि उसके लिए आज मैं और आप योगाभ्यास करते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, यद्यपि कैवल्य योग का मूल उद्देश्य रहा, लेकिन अपना जीवन सुखी हो, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य हमें उपलब्ध हो, एक अपने व्यक्तित्व में विकास हो, इतने कुछ मर्यादित उद्देश्य, मतलब योग के मूल उद्देश्य की तुलना में मर्यादित है। अन्यथा ये मर्यादित नहीं है, ये भी बड़ा काफी बड़ा विषय है पाने के लिए, लेकिन उस दृष्टि से कहा कि इस मर्यादित उद्देश्य से हम योगाभ्यास सीखते हैं, करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। तो जिस आसन या प्राणायाम की ज्यादा लोकप्रियता आज पूरे दुनिया भर में है, उसके तुलना में महर्षि पतंजलि ने इस आसन और प्राणायाम की ज्यादा बात नहीं की है। कोई भी आसन का उन्होंने नाम नहीं लिया है, इससे भी आप अवगत होंगे। उन्होंने आसन की गुणात्मकता की चर्चा की। He has described the quality of आसन, स्थिर सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्यात, अनंत समापत्तिभ्याम, ऐसे दो ही सूत्र उसके तंत्रों के बारे में उन्होंने उपयोग किए, और फिर तीसरा सूत्र उसके परिणाम के बारे में उपयोग किया। तो पूरे 195 सूत्र में 195 केवल तीन सूत्र आसन के लिए उपयोग किए हैं और 5 सूत्र प्राणायाम के लिए उपयोग किए। उसमें भी पहले 3 सूत्र उसके तंत्र के बारे में और दूसरे 2 सूत्र उसके परिणाम के बारे में। तो आसन क्या हो, तो किस लिए हो, वो तो मेडिटेशन के लिए हो, ध्यान के लिए हो, क्योंकि आसन के इस तंत्र में ही मेडिटेशन अंतर्भूत है, अनंत समापत्तिभ्याम उन्होंने कहा। इसलिए अष्टांग योग आपने सुना होगा, तो ये अष्टांग योग एक के बाद एक, मतलब जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स, ऐसा नहीं है, बल्कि दे आर इंटरमंगल। इसलिए आसन में ही ध्यान चालू होता है, बाद में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, बाद में ध्यान आता है, ऐसी बात नहीं है। वो आगे और विकसित होता है, इतनी बात है। तो ध्यान के बगैर आसन नहीं है, ध्यान आसन का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार की आसन की क्वालिटी की चर्चा योग दर्शन में की है। लेकिन जो हठ योगी थे वे ज्यादा प्रैक्टिकल थे। उन्होंने घर दार छोड़ के वे जंगल में जाके कुटी में रहने लगे, अभ्यास करने लगे, जिसको कैवल्य कहते हैं, मोक्ष, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
इससे छुटकारा पाना है, यही योग का मुख्य उद्देश्य है। जब मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस प्रकार की अनुभूति साधक को हो जाएगी, और उस समय उसको ये भी अनुभूति हो जाएगी कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसलिए जिसे वास्तव में योग, योग यानी कि जोड़ना, आत्मा और परमात्मा एक है, ये जानकारी, जानकारी मतलब जानकारी नहीं है जिसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, बुद्धि के स्तर पर वो नहीं है, रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, अनुभूति जब आ जाती है, तब वो जन्म मृत्यु के चक्र से उसकी छुटकारा होती है। ये मुख्य योग का उद्देश्य है। लेकिन उसके लिए जो बातें कही गई है, उसी के लिए जब घर संसार छोड़ के योगी जंगल में जाके कुटी में रहने लगे और उस उद्देश्य से, कैवल्य के उद्देश्य से साधना करने लगे, तो कुछ चीजें उनके ध्यान में आ गई। बोलते हैं कि आइडियलिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉब्लम। जब तक हम समस्या से दूर है तो बड़ी आदर्शवादी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन जब वास्तव में, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, हम करने जाते हैं, समस्या के नजदीक आते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या है हमें समझ में आता है। हम कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमें, फॉर एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार से योग, केवल ये सब दूर रह के हमारे जैसे लोग बातें करते हैं, पोपट पंची, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब उस अवस्था की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो समझ जाता है कितने पिट्स है, क्या क्या तकलीफ है। तो वही बात उनकी भी हो गई। बड़ी आशा से घर दार छोड़ के चले गए थे, चले योगी बनेंगे, इसी जन्म में मोक्ष को पाएंगे, कैवल्य को पाएंगे, जन्म मृत्यु के श्रृंखला से इसी जन्म में छुटकारा पाएंगे। लेकिन जब साधना के लिए बैठे, वो इतना आसान नहीं है। ये ध्यान में महर्षि पतंजलि का स्थिर सुखम आसनम, कुछ नहीं, आराम से बैठो स्थिरता से। काहे का स्थिर और काहे का सुख, 5 मिनट नहीं बैठ सकते, बीच बीच में हिलना पड़ता है। तब समझ में आ गया हम कितने पानी में है। तो जब भी आदमी समस्या का विचार करता है, तब वो सोचने लगता है। उसके पास दो है पर्याय। एक, चलो ये मुझे जमने वाले नहीं है, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी करके स्केप करो, या फिर भिड़ो। बराबर है ना। यदि समस्या है तो समस्या क्यों है और मैं उसका निर्वाह कैसा करूंगा, ये पॉजिटिविटी होती है। तो प्रपंच और अध्यात्म, इसमें एक फर्क ये है कि आदमी, ये दौर है, दौर, एक बार दौर कट गए तो वापस पीछे नहीं जा सकता है। तो संसार छोड़ के आए हैं तो वापस संसार में जाएंगे तो समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता था, नहीं मिलता है। उस समय की बात करता हूँ। इसलिए उनके पास मतलब पीछे जाने के दौर तो कट गए थे, तो एक ही रास्ता था, पूरी तरह से कूदो, कूदे है तो पूरी तरह से कूदो, और क्या। तो समस्या से भिड़ना था। समस्या क्या है समझ में आ गई, क्योंकि न सुख है न स्थिरता है, बैठ नहीं सकते ज्यादा समय। सवाल पूछना चालू कर दिया, क्यों नहीं बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते, इसका उपाय क्या है। कभी भी आदमी बड़ी गंभीरता से सवाल पूछता है तो उसका उसका जवाब मिल जाता है। इस सृष्टि का नियम है। 400 साल पहले न्यूटन ने पूछा फल नीचे क्यों गिरता है, क्या उसके पहले किसी ने नहीं पूछा होगा? हजारों साल पहले अनेक आदमी ने पूछा होगा, अरे फल नीचे क्यों आता है। लेकिन बाद में सोचा, क्यों दिमाग में दिमाग का दही बनाने का, ऐसा बोलते हैं हमारे भाषा में, नहीं तो क्यों मगजमारी करते हो, क्यों पूछते हो, फल खाने को मिल रहा है ना, खुश हो ना भाई। अच्छा है कि फल ऊपर नहीं जा रहा, नीचे मिल रहा है, नीचे आ रहा है, फल नीचे आ रहा है, इसीलिए तो आपको खाने को मिलता है, खुश रहो ना, क्यों सोचता है। मतलब उसकी, इसीलिए मैंने कहा सवाल जब गंभीरता से पूछा जाता है तब जवाब मिलता है। मैं और आप ऐसे बहुत से सवाल पूछते हैं लेकिन बाद में छोड़ जाते हैं, जैसे उसका जवाब आसानी से नहीं मिलता है हम छोड़ देते हैं।
तो उनकी बात वैसी नहीं थी। जैसे न्यूटन ने गंभीरता से पूछा और तब जाके उनको जवाब मिल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स करके, उसी प्रकार से उन्होंने गंभीरता से पूछा, मुझे क्यों आसन में ज्यादा समय बैठने को नहीं जम रहा है। तो उनके ध्यान में आ गया अपने जो भी अंदर की रचना है, हम जॉइंट्स बोलते हैं, ये थोड़ा अभी साइंटिफिक शब्द है, वे साइंटिफिक इंग्लिश शब्द उनको मालूम नहीं होंगे, लेकिन बात तो वही है ना, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, हकीकत वही होती है, फैक्ट। तो जो भी रचना है अंदर की, आज हम उसको टेंडन बोलते हैं, लिगामेंट्स बोलते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब स्ट्रेंथन्ड नहीं है, उसमें न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, ये शब्द नहीं वापरे होंगे उन्होंने, बात वही है, वो उनके ध्यान में आ गई। और फिर उसको स्थिर करने के लिए उन्होंने पूरे बाहर देखा, सजीव है ऑब्जेक्ट, निर्जीव है, सबको इमिटेट करते हुए, नकल करते हुए, उसके जितने भी प्रकार के शेप्स बॉडी के बनाए जा सकते हैं, पेड़ को देख के वृक्षासन उन्होंने ढूंढा, वही नाम उसको दे दिया। पहाड़ को देख के पर्वतासन किया, उसी उसी को नाम दे दिया। फना निकालते हुए सांप को देख के भुजंगासन डिजाइन किया, वही नाम उसको दे दिया। उस प्रकार से अनेक आसन उन्होंने निर्माण किए। हठयोग का एक ग्रंथ है घेरंड संहिता का, उन्होंने बोला आसनानि समस्तानि यावंतु जीव जंतव। तो कितने आसन है, जितने जीव जंतु है उतने आसन है। और वो जमाने में मान्यता थी कि 84 लाख योनिस, तो 84 लाख जीव है, ऐसी मान्यता थी। आज आधुनिक विज्ञान ने माइक्रोस्कोप के द्वारा वगैरह सब बैक्टीरियास वगैरह सब मिलके कुछ 1.5 करोड़ अलग अलग जीव जंतु इस पृथ्वी पर है, ऐसा ढूंढ निकाला है। तो उस समय बात 84 लाख योनि की हुआ करती थी, तो उतना आसन हो सकते हैं। अब इतने आसन कौन करेगा किधर समय है और जरूरत क्या है तो उसमें से फिर उन्होंने 84 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी 34 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से अपना अपना ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आसनों का विवरण उन्होंने किया है। लेकिन उतने ही आसन है ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। तो वो लिबर्टी हमें है, सिर्फ आसन और एक्सरसाइज एक नहीं है। तो योगासन के नाम के ऊपर व्यायाम नहीं करने का, एक्सरसाइज नहीं करने का। तो फिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्तिभ्याम, इस मूल मार्गदर्शक तत्व के दायरे में जो भी बैठेगा, जो भी शरीर की स्थिति आप अपनाओगे, वो आसन होगा। तो उन्होंने ऐसे अनेक आसन तैयार किए, खुद वे करने लगे उसका अभ्यास, आसन में ज्यादा समय मेंटेन करने लगे, और तब उनके ध्यान में आ गया उसका जो भी एक सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव इफेक्ट अपने नर्व्स के ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर, टेंडन्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के ऊपर, उधर के ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर हो रहा है। उससे धीरे धीरे उनकी शरीर की स्थिरता बढ़ने लगी। दे वर एबल टू सिट इन डिफरेंट मेडिटेटिव पोस्चर्स फॉर लॉन्गर एंड लॉन्गर टाइम। तो उन्होंने जीता। तो कोई आसन का नाम महर्षि पतंजलि ने नहीं लिया था, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के नाम दिए हुए, अनेक प्रकार के एक्टिविटीज के आसन उन्होंने डिजाइन किए और उसका उनको उपयोग हो गया। फिर अष्टांग योग में आपको मालूम है कि आसन के बाद प्राणायाम का मेंशन है, 4th अंग। तो प्राणायाम सिद्ध नहीं हो रहा था, उसमें कमी थी। फिर उन्होंने सवाल पूछना चालू किया, आसन तो अभी जमने लगा अपने को, प्राणायाम नहीं जम रहा है, क्या कारण है। और महर्षि पतंजलि ने तो पहले ही कहा है कि धारणा सुचे योग्यता मनसा, एक एक परिणाम प्राणायाम का, कि प्राणायाम जब सिद्ध होगा, मन धारणा के लिए, ध्यान के लिए तैयार। और ध्यान ही तो मुख्य उद्देश्य है, आखिर ध्यान से समाधि में जाना है और समाधि से कैवल्य पाना है। जो मुख्य उद्देश्य योग का वही है, अंतिम गंतव्य जिसको कहते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन। तो बीच में प्राणायाम जमना चाहिए, नहीं तो कैसा होगा। तो क्यों नहीं हो रहा है प्राणायाम, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, सवाल पूछने लगे। वापस पहले जैसे बताया, गंभीरता से पूछने लगे, और जब गंभीरता से पूछने लगे तब जवाब मिलने लगा। वो जवाब क्या था,
कि जैसे आज हम बात करते हैं कि एक शरीर है अपना, जिसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी, या अपने इधर जो पंचकोश की संकल्पना है योग शास्त्र में, तो अन्नमय कोश यानी कि बॉडी। ऐसा तो आधुनिक विज्ञान दो ही स्तर मानता है, शरीर और मन, बॉडी एंड माइंड, और बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन जितने भी दुनिया भर में कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल फील्ड्स है, उसमें शरीर मन के साथ एक आत्मा को माना गया। हालांकि बाहर वे लोग सोल कहते हैं, और सोल और भारतीयों का आत्मा, भारतीय शास्त्र का एक ही ऐसा नहीं, उसमें भी थोड़ा सा फर्क है, वो रहने दीजिए बाकी। लेकिन उन्होंने 3 स्तरीय एग्जिस्टेंस को माना। विज्ञान ने 2 ही स्तर माने, शरीर और मन। बाकी अध्यात्म शास्त्रों ने या रिलीजन्स ने उसके साथ सोल या आत्मा जोड़ा। हमारे इधर तैत्तिरीय उपनिषद ने सबसे पहले और एक कदम आगे बढ़ते हुए पंचकोशीय रचना की संकल्पना सामने रखी, 5 लेयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस। तो अन्नमय कोश इज बॉडी, फिर दूसरा कहा प्राणमय कोश, इट्स एनर्जी बॉडी। तीसरा है मनोमय कोश यानी कि मन। चौथा विज्ञानमय कोश यानी कि विवेक बुद्धि, कंसाइंस जिसको कहते हैं। और बाद में आनंदमय कोश, और उसके परे है आत्मा का दर्शन। तो शरीर और मन यानी कि अन्नमय कोश और मनोमय कोश हम समझ रहे हैं। तो ये प्राणमय कोश क्या है? इट्स नॉट अ फिजिकल बॉडी, इट्स अ एनर्जी बॉडी, एक ऊर्जा अवस्था है, और वो अंदर भी है बाहर भी है। इसी के कारण जैसे ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये यदि मैग्नेट है, ये मैग्नेट की बॉडी है, लोहे का बना हुआ रहता है, स्टील का, तो उसको हम बोलेंगे अन्नमय कोश। इसको बोलते हैं एक पोल है ना, नॉर्थ पोल सपोजिंग, एंड दिस इज साउथ पोल। तो उसके बाहर इधर होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी। मतलब इट्स नॉट पार्ट ऑफ बॉडी, इट्स नॉट फिजिकल एंटिटी, इट्स एनर्जी एंटिटी। सो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एनर्जी। तो दैट इज प्राणमय कोश। मैंने एक एग्जांपल दे दिया बस। तो हमारा जैसा शरीर है जो फिजिकल है, डॉक्टर बॉडी को डिसेक्ट करते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ खोज निकाला है, ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है। वो कोई भी प्राणमय कोश का हिस्सा नहीं है। दैट ऑल इज पार्ट ऑफ अन्नमय कोश। तो प्राणमय कोश क्या है? इट्स एनर्जी, और उस एनर्जी को उन्होंने कहा प्राण। ये प्राण है तब तक हम जीवित हैं। प्राण गया, गत प्राण, गत प्राण मतलब मर गया। तो एक मरा हुआ आदमी है और एक जिंदा आदमी है, क्या फर्क है? इधर भी हार्ट है, इधर भी हार्ट है, इधर भी ब्रेन है, इधर भी ब्रेन है। फर्क क्या है? इधर का हार्ट काम नहीं कर रहा है इधर का ब्रेन काम नहीं कर रहा है, इधर का काम कर रहा है। फंक्शनैलिटी इज द डिफरेंस, एंड दैट फंक्शनैलिटी इज बिकॉज ऑफ प्राण। प्राण है इसलिए वो कार्यरत है, प्राण नहीं है इसलिए कार्यरत नहीं है। इसलिए गत प्राण बोलते हैं, मतलब प्राण गया, प्राण गया तो मर गया। बहुत बार ऐसा होता है, सोसाइटी का कोई एडमिट है हॉस्पिटल, हम पूछते हैं फलाना फलाना चाचा को कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया है, फिर कौन से वार्ड में है, समथिंग लाइक दैट। मान लीजिए चाचा उधर लुढ़क गए, तो फिर क्या पूछते हैं? बॉडी कब ला रहे हो? देखिए भाषा में कितना फर्क हो गया। जब तक वे जीवित थे, एडमिट थे, चाचा थे, फलाना फलाना चाचा थे। वे गुजर गए तो ला रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? बॉडी कब ला रहे हैं? बॉडी। तो चाचा किधर गए? फिर वही बॉडी है, वही दिख रहे हैं चाचा, वही काले गोरे जो भी है सब दिख रहे हैं। फिर वो चाचा नहीं रहे। मतलब चाचा किस में थे? चाचा बॉडी में थे या और किस में? चैतन्य में चाचा थे, बराबर है ना। तो प्राण, ये सिर्फ प्राण नहीं होता है, प्राण के साथ जीवात्मा कहते हैं, प्राण और आत्मा सब कुछ चला जाता है आदमी जब मरता है। उसकी ज्यादा चर्चा करना ये आज का उद्देश्य नहीं है अपना। लेकिन ये प्राण है, प्राण जो शरीर में कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। जब प्राण चला गया कार्य नहीं होगा, वो डेड हो गया। इसलिए हम भगवान की मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा ये शब्द वापरते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्या तो पहले क्या था, अब क्या हो गया? तो यही बात है। इसलिए ये प्राण जो आधुनिक विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, योग शास्त्र हो या फिर आयुर्वेद हो
इसमें इसकी चर्चा की गई है। एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ बॉडी, पक्का। इट इज समथिंग बियॉन्ड बॉडी, एनर्जी। फिर उन्होंने बताया है उसका विवरण कि 72,000 नाड़ियों के नेटवर्क में से बहता है। नाड़ी जिसको कहा है उन्होंने, नाड़ी। तो बहुत से लोग आजकल इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं कि नाड़ी इज रिवील्ड और चक्रास रिवील्ड, समथिंग लाइक दैट। और फिर वे बताते हैं कि ब्लड वेसल्स आर नाडीज और नर्व्स आर नाडीज। लेकिन जो भी मेरी थोड़ी भी अल्प समझ है उसके अनुसार वो नहीं है। ब्लड वेसल्स आर पार्ट ऑफ बॉडी, अन्नमय कोश। नर्व्स आर पार्ट ऑफ बॉडी, अन्नमय कोश। So it's very difficult to accept blood vessels as nadis or nerves as nadis. No, they are part of body. Energy channel through which the prana flows, they are known as nadis. So they are not something seen. मैं सिंपल उदाहरण आपको बता दूंगा। मान लीजिए हम जिधर भी बैठे हैं अपने अपने घर में, अपने घर में अपने बाजू में दुनिया भर के 500-600 टीवी चैनल के वेव्स मौजूद है, उपस्थित है, लेकिन ना हमें कुछ दिखाई दे रहा है ना हमें सुनाई दे रहा है। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लाइए टीवी लाइए, उसको प्रॉपर ट्यूनिंग करे, चले बीबीसी ऑन करिए, आपको बीबीसी दिखेगा, सुनेगा भी, दिखेगा भी। मतलब उसके पहले वो नहीं था, वो था, आपको मालूम भी नहीं कि वो था, क्योंकि अनलेस देयर इज द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट इट कांट बी मैनिफेस्टेड। दैट डजंट मीन इट वाज नॉट देयर, इट वाज देयर, इट इज देयर, बट अनलेस वी हैव गॉट प्रॉपर मोड टू मैनिफेस्ट इट इज नॉट गेटिंग परसेप्टेड और मैनिफेस्ट। तो वही बात है। इसी प्रकार से प्राण और नाड़ी हमें समझते नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रक्चर। वो रचना के हिस्सा नहीं है, कार्य के हिस्से हैं। और ये 72,000 नाड़ियों का नेटवर्क जिसमें से प्राण बहता है, जिसके कारण हम जीवित है। जब वो प्राण बहना बंद होता है तो हम गुजर गए। इस प्रकार का ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो उनको वही रियलाइज हुआ उस वक्त कि प्राणायाम क्यों नहीं साध्य हो रहा है, ये नाड़ियां ही साफ नहीं है। क्योंकि नाड़ियों में से यदि सुचारू रूप से प्राण बहेगा तो उस पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये प्राणी है जिसके कारण मन काम करता है। देखिए प्रवास, देखिए योग किसके लिए है? आत्मा के लिए। लेकिन आत्मा के लिए बीच में तकलीफ किधर है? मन ही तो है, चित्त। योग चित्त वृत्ति निरोधा, इस प्रकार का परिभाषा योग की दूसरे ही सूत्र में महर्षि पतंजलि करते हैं। तो रुकावट मन में है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसे उपनिषद ने भी कहा कि मन के कारण आदमी बंधन में है। और जिस समय मन उस अवस्था में चला जाएगा तो वही मन आपको मुक्ति के द्वार खोल देगा। तो दोनों के लिए कारण है, निगेटिव भी साइड है, पॉजिटिव भी साइड है। इसलिए मुक्ति के या आत्मा की ओर जाने के बीच में यदि अड़सर है तो मन का ही है। और मन किस पर काम करता है, या मन को कार्य करने में कौन मदद करता है? प्राण। प्राण के बगैर न शरीर काम करेगा न मन काम करेगा। तो प्राण के द्वारा ये होता है। इसलिए प्राण पर जब हम नियंत्रण पाएंगे, अपने आप मन पर नियंत्रण पाए, वही तो प्राणायाम का सिद्धांत है। तो प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण लाना, इन नाड़ियों को साफ करना, यही प्राणायाम का उद्देश्य है। और जब प्राण पे नियंत्रण आ जाएगा तो मन पर नियंत्रण आ जाएगा। और मन पर आएगा, आगे जाके हम योगी बनेंगे। हम सर भोगी इसलिए है कि हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन चंचल है। और जिस दिन हमारा मन स्थिर हो जाएगा हम योगी बन जाएंगे। इतना आसानी से उन्होंने बताया है, और वही कठिन है, मन को स्थिर करना। तो जब महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसन, ये स्थिरता किसकी है? स्थिरता केवल शरीर की नहीं है, स्थिरता शरीर की और मन की। तो उन्होंने पाया कि ये नाड़ियां साफ नहीं है, इसलिए उधर से प्राण बराबर बहता नहीं सुचारू रूप से, इसलिए उसका नियंत्रण करना भी मुश्किल है। और यदि प्राण पर नियंत्रण करना ही, गाड़ी उधर ही अटक गई है तो आगे का प्रवास तो रुक ही गया। तो फिर उन्होंने चिंतन उनका चालू हो गया, कैसे इसको साफ करें, कैसे इसको साफ करें। और तब जाके
शुद्धि क्रिया नामक एक नए कैटेगरी का जन्म है। तो महर्षि पतंजलि ने आसन की बात की है, लेकिन अलग अलग आसन को नाम नहीं लिए है। उन्होंने सिर्फ मेडिटेटिव पोस्चर की बात की है और उसके क्वालिटी की बात की है, बराबर, रादर देन द टेक्निक। फिर उन्होंने प्राणायाम की बात की है, उन्होंने प्रत्याहार और ध्यान की बात की है, और मन में क्या कठिनाई है जिसके कारण मन आगे जाएगा, फिर वो अवस्था में जाने के बाद उससे क्या क्या असर होता है, ये सब विवरण उन्होंने किया है। लेकिन हठ योगी ज्यादा प्रैक्टिकल थे, उन्होंने अनेक आसन को ढूंढा, डेवलप किया। So in short, हठ योग इज लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ योग, जिसको R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। तो उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने जो 4 प्राणायाम की बात की, वो 4 प्रकार के प्राणायाम है, 4 फेसिस है, उसमें विवाद है तज्ञों में, लेकिन हठ योगियों ने अलग अलग प्रकार के प्राणायाम के तंत्र विकसित किए। जैसे आपको मालूम है कि उज्जयी, उन्होंने अष्टकुंभक की बात की, हालांकि उसकी भी सब अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हठ योगियों ने जैसे अनेक प्रकार के आसन निर्माण के, अनेक प्रकार के प्राणायाम के तंत्र विकसित, उसी प्रकार से बंध, मुद्रा, क्रिया, ऐसे उनकी खासियत है। मतलब और किधर भी ये नहीं थे कैटेगरी, ये नए नए कैटेगरी को उन्होंने निर्माण किया, क्यों आखिर उद्देश्य वही है। एक सामान्य आदमी सहजता से नहीं कर सकता वो चीजें। महर्षि पतंजलि ने बताया होगा ऐसा ऐसा अष्टांग योग कर सके, या वेदों में उसके भी पहले आप सीधा ध्यान में चले जाएंगे, ऐसी बातें कही है। लेकिन उसके लिए पूर्व जन्म के सुकृत चाहिए, तभी जाके उस अवस्था में जा सकते हैं करके। वो जब तैयारी नहीं होगी तो शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, तो आपको ये सब आसन, बंध, मुद्रा, क्रिया, ध्यान, तब जाके प्राणायाम और आगे जाके ध्यान होगा। इस प्रकार से उन्होंने पूरा हठ योग विकसित किया। इसीलिए हठ योग के हठ प्रतिपिका के दूसरे श्लोक में ही सभी गुरु की वंदना करने के बाद वे कहते हैं, केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते। उनका एम क्लियर है कि राजयोग ही हमारा उद्देश्य है। लेकिन इतना सब उठ के सबको राजयोग इतने आसानी से हासिल नहीं होगा जब तक हमारे पूर्व कर्म उस प्रकार के नहीं हो। इसलिए ये तैयारी से शुरुआत करने पड़ेगी हमें, इतने चीजें, आसन, बंध, मुद्रा, क्रिया, प्राणायाम, और हम आगे बढ़ेंगे करके। तो उस दृष्टि से क्रिया का बड़ा महत्व है। लेकिन फिर भी हठ प्रतिपिका ने जो चतुरंग योग बताया, उसमें उन्होंने आसन का स्थान है, कुंभक यानी कि प्राणायाम का स्थान है, मुद्राओं का स्थान है, और नादानुसंधान मतलब मेडिटेशन का स्थान है। उन्होंने हठ योग के ये जो शुद्धि क्रिया बताए, लेकिन उनको एक तैयारी करके नाड़ी शुद्धि के स्वरूप में प्राणायाम की तैयारी करने के लिए इस प्रकार से उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया कि जब तक नाड़ी नहीं साफ होंगे तब तक प्राणायाम नहीं सिद्ध होगा, जब तक प्राणायाम नहीं सिद्ध होगा गाड़ी आगे मेडिटेशन की ओर जाएगी नहीं। और एक बार नाड़ियां शुद्ध हो गई, प्राणायाम सिद्ध हो गया, और फिर प्राणायाम करते रहोगे तो अपने आप नाड़ी शुद्ध रहेंगे। दी नाडीज विल कंटिन्यू टू रिमेन क्लीन। आपको बाद में क्रिया करने की जरूरत नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। घेरंड संहिता दूसरा हठ योग का ग्रंथ है, उन्होंने सप्तांग योग सामने रखा और उस पहले ही अंग में षट कर्म का स्थान दे दिया। मतलब घेरंड संहिता ने और बड़ा सम्मान इस क्रियाओं को दे दिया कि पहला स्थान सप्तांग योग में, पहला अंग का स्थान उन्होंने उसको दे दिया। तब जाके आपका शरीर, मन और तैयार हो जाएगा आगे की साधना करने के लिए। इस प्रकार की बात है। तो मतलब ये शुद्धि क्रिया का स्थान किधर है, ये हमने इस विवरण से समझा। और यो तो 6 विभाग में उसका वर्णन आता है हठ योग के ग्रंथों में। और हठ योग, ये षट क्रिया या शुद्धि क्रिया, ये हठ योग का बहुत बड़ा हिस्सा है। वे 6 है इसलिए षट क्रिया कहा। तो धौतिर्बस्तिस् तथा नेतिस्त्राटकम नवलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। इस श्लोक के माध्यम से ये 6 कौन से कैटेगरीज है ये उन्होंने बताया। और आगे जाके उसमें अनेक प्रकार के डिविजन्स, सब डिविजन्स हुए हैं। घेरंड संहिता में सब मिलके 23 क्रियाओं का, मतलब है कैटेगरी 6 ही, लेकिन 6 के अंदर जो डिवीजन, सब डिविजन हुए, उसके कारण 23 क्रियाओं का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। और आजकल तो हम उसमें और भी क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट किया आधुनिक लोगों ने, और आधुनिक
लोगों की समस्या अलग है, उनके जरूरतें अलग है। जैसे जलनेति नामक कोई क्रिया है नहीं अपने ग्रंथों में। तो जलनेति इतनी आसान है। आधुनिक गए गत कुछ 100 सवा 100 बरस से आश्रम से योग समाज में आ गया, और एक स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य लोग धीरे धीरे उसका अभ्यास करने लगे, उसमें प्रचार होने लगा, और किस प्रकार से अलग अलग रोग अच्छे होते हैं जो भी आजकल जानकारी है वो जैसे समझ गया। तो सबसे पहले एक नए आदमी को करने के लिए जलनेति नामक एक पॉट बनाया गया। तो बहुत ही आसानी से आदमी एक नाक से दूसरे नाक से पानी निकाल सकता है, उसके जो भी लाभ उनको मिलते हैं मिल सकते हैं करके वे हो गए। या फिर सूत्र नीति था पारंपरिक ग्रंथों में, लेकिन सूत्र एक तो अ, करना शुरू में उतना आसान नहीं है। तो रबर नामक एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत डेलिकेट है, कंपैरेटिवली स्लिपरी है। तो नए आदमी के लिए रबर सीखना और करना बहुत आसान हो जाता है। तो आजकल जलनेति और रबर नीति बहुत पॉपुलर है। तो हालांकि बहुत से स्कूल में आपको केवल दोनों ही क्रिया सिखाएंगे, जलनेति और रबर नीति, क्योंकि बहुत आसान है। बाकी क्रिया जरा झंझट लगती है लोगों को, तो उसमें जाते नहीं। इसलिए क्रिया एक ऐसी कैटेगरी है कि बहुत निग्लेक्टेड है। बहुत से संस्था उसको छूते भी नहीं है। कुछ संस्थाएं तो उसको परहेज रखते हैं कि क्रिया करने का नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो करने का नहीं तो क्यों डिजाइन किया हठयोगी ने? तो करने का है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है, या सिखाना इतना आसान नहीं है। इसलिए या फिर उसको कोई भी अभी एक सेंटर है तो आसानी से हॉल मिल गया तो कारपेट डाल के आराम से आसान प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन क्रिया उतने इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होगा। क्रिया करने के लिए आपको पानी का अरेंजमेंट चाहिए, पानी गर्म करने का अरेंजमेंट चाहिए, उसको धोने का साफ करने का अरेंजमेंट चाहिए। इसलिए एक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल मर्यादा के कारण जरा उसको निग्लेक्ट करते हैं, या फिर उसको सिखाने के लिए सही एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होती है, नहीं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा लोग रिस्क नहीं लेते हैं। और हमारी संस्था योग विद्या निकेतन उसमें सबसे आगे है, लीडिंग है। तो एक बड़ी खासियत योग विद्या निकेतन की रही है कि हम सभी लोगों को बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्रियाएं सिखाते हैं, जिसके कारण शरीर की शुद्धि होती है, जिसको हम इंटरनल बॉडी क्लींसिंग बोलते हैं। और जो उसका मूल सूक्ष्म स्तर पर, क्योंकि शरीर की शुद्धि हमें समझते हैं अपने दिमाग को, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जो नाड़ी शुद्धि है वो अपने ध्यान में नहीं आती है, लेकिन वो होती है, उसके हमें लाभ मिलते हैं। तो इन क्रियाओं के तंत्रों के बारे में ज्यादा बात करना आज के लेक्चर का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि तंत्रों के बारे में बात करनी है तो विथ डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं तो तंत्रों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज का अपना उद्देश्य है कि शरीर और मन पर उसके क्या असर होते हैं क्रिया के। एक तो अभी हमने समझ लिया कि नाड़ी को साफ करते हैं, जिसके कारण प्राण में नियंत्रण लाने में मदद होगी, या नाड़ी साफ होने के कारण सुचारू रूप से प्राण बहेगा। लेकिन ये तो जरा सूक्ष्म बातें हो गई, क्योंकि हमने न नाड़ी हम समझी है, न हमें प्राण मालूम है क्या है, बराबर है। हमने सिर्फ बुद्धिक स्तर पर समझने की कोशिश की, हमने उसको रियलाइज नहीं किया है, बराबर है ना। प्राण में हमें रियलाइज सिर्फ मनोमय कोश, आई मीन अन्नमय कोश यानी कि शरीर को हमने अनुभव किया है। तो अ, अपने जो योग विद्या निकेतन के संस्थापक रहे हमारे निम्बाड़कर गुरुजी, उन्होंने एक योग को सरल बनाते समय, लोगों को आसानी से समझाते समय उसके असर के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। मतलब आसानी से हम एक सामान्य लोगों को बता सकते हैं कि योग के कैसे असर होते हैं। एक होता है लोकल इफेक्ट यानी कि स्थानीय परिणाम, दूसरा होता है एसोसिएटेड इफेक्ट, और तीसरा होता है सेंट्रल इफेक्ट, मध्यवर्ती परिणाम। तो जैसे आप भुजंगासन का उदाहरण लेते हैं समझने के लिए, बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, खास करके फर्स्ट 1/3 ऑफ द स्पाइन को बैकवर्ड बेंडिंग मिलता है। तो उधर जो जो इफेक्ट हो रहे हैं, उधर का मसल टोनिंग होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, नर्व स्टिमुलेशन होगा, उधर का लिगामेंट्स के ऊपर जो भी टेंडन्स के ऊपर पॉजिटिव असर, वो सब लोकल इफेक्ट्स में आएंगे। अभी भुजंगासन तो स्पाइन ने नहीं किया कि केवल स्पाइन ही उसके लाभ का हकदार होगा। भुजंगासन आपने किया, व्यक्ति ने, मतलब उसका संपूर्ण शरीर, मन और आत्मा जो मिलके एक इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी है, वही योग की खासियत है।
कि जैसे मेडिकल साइंस में टुकड़ों टुकड़ों में विचार किया जाता है शरीर का, वैसा योग में नहीं है। वो सब मिलके एक यूनिट करके सोचता है। तो आपका समुचित व्यक्तित्व लाभ का अ, हकदार है। इसलिए केवल फर्स्ट वन थर्ड स्पाइन के ऊपर उसके लाभ नहीं होंगे, तो बाकी बॉडी के ऊपर जैसे छाती खिंच गई तो जो भी असर आपके लंग्स के ऊपर होंगे, जो लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उधर का इम्यूनिटी, आजकल इम्यूनिटी बहुत बहुत वापरा हुआ शब्द हो रहा है कोरोना के कारण। एडवर्टाइज करते समय इस साबुन से इम्यूनिटी बढ़ता है, इस तेल से इम्यूनिटी बढ़ता है। अरे क्या पागलपन है, साबुन से इम्यूनिटी बढ़ता होगा, साबुन से वायरसेस नष्ट होते होंगे, क्लेम मान सकते हैं हम। इस साबुन से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये काहे का स्टेटमेंट है। लेकिन इम्यूनिटी का यदि दावा करना है तो मुझे लगता है सबसे ऊपर योग ही है। यदि इम्यूनिटी के ऊपर किसी को दावा बोलना है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो सबसे बड़ा अधिकारी योग का क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र उसके बाद में। एनीवे, तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बराबर है। तो ये हुआ एसोसिएटेड इफेक्ट। उसी प्रकार से आपके एब्डोमेन के ऊपर जो भी असर होंगे, जैसे पेट की चर्बी कम होने में, उधर के मसल टोन होने में, अंदर के मसल, जैसे बाहर मसल होते हैं अंदर भी मसल होते हैं, स्टमक में, जठर में मसल्स होते हैं, इंटेस्टाइन में मसल्स होते हैं, लेडीज के यूट्रस में मसल्स होते हैं। जब ये मसल टोन रहेंगे तो उसका कार्य सुचारू रूप से चलेगा। तो जिस प्रकार बाहर के मसल के टोन होता है, अंदर के मसल टोन होते हैं, तो आपका डाइजेशन सुधरेगा, आपका बॉयल अच्छी तरह से मूव होगा, आपके लीवर पैंक्रिया में मसाज मिलेगा, तो डायबिटीज जैसे डिजीज प्रिवेंट होने के लिए, क्योर होने के लिए मदद हो जाएगा, किडनी फंक्शनिंग, लाइक दैट ह्यूज ह्यूज बेनिफिट्स। मतलब योग के लाभों की गिनती करना मुश्किल है। हम कुछ शब्दों में उसको सामने रखने का प्रयास करते हैं कि ये लाभ उसमें संभव है, लेकिन उतना ही नहीं है। आप सूक्ष्म स्तर पे गो जाओगे और लाभ मिलते जाएंगे और मिलते, उसको कोई अंत नहीं है, अनंत लाभ मिलते जाएंगे। हाँ, कुछ बेनिफिट ज्यादा क्वांटम में मिलेंगे तो उसकी हम चर्चा करते हैं सामान्यतः, इस आसन से ये होता है। लेकिन जो कम क्वांटम में बेनिफिट मिलेंगे, सूक्ष्म स्तर पर मिलेंगे, उससे हम ज्यादा उसकी ज्यादा चर्चा करते नहीं, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है, कितना लंबा खींचोगे आप, बराबर है। तो एक है लोकल इफेक्ट, दूसरा होता है एसोसिएटेड इफेक्ट। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में बोलते हैं साइड इफेक्ट ना, साइड रिएक्शन या साइड इफेक्ट, तो योग में साइड बेनिफिट होता है। मतलब किसी को स्पॉन्डिलोसिस है करके उसने भुजंगासन किया, तो केवल स्पॉन्डिलोसिस का बेनिफिट देके वो भुजंगासन रुकेगा नहीं, आप चाहे या न चाहे। आपके लंग्स के ऊपर असर होगा, आपके उदरांतर का ऊपर असर होगा, ये होगा एसोसिएटेड। और तीसरा होता है सेंट्रल इफेक्ट या मध्यवर्ती परिणाम, और वो कॉमन होता है। लोकल इफेक्ट और एसोसिएटेड इफेक्ट प्रैक्टिस के अनुसार बदलेगा, कौन सा आसन है या कौन सी क्रिया है, कौन सा प्राणायाम है, लाइकवाइज वो बदलेगा, अलग अलग जगह उसकी बदलेगी। लेकिन सेंट्रल इफेक्ट जो है ना, एक मध्यवर्ती परिणाम, वो कॉमन है सभी में। उसके क्वांटम में थोड़ी कमी हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन डीप मेंटल स्ट्रेस रिलीविंग, जब जब शरीर का प्रयोग करोगे मन का तनाव दूर होगा, जब जब शरीर वापरोगे नहीं तो मन का तनाव बढ़ जाएगा। तो मेंटल स्ट्रेस रिलीविंग है, अंदर का बैलेंसिंग है, मैंने कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन की बात की थी, हीलिंग जो एक प्रोसेस है, इम्यूनिटी, ये सब हम ग्रॉसली नहीं बता सकते हैं, बराबर है। दे आर वेरी वेरी सटलर इफेक्ट्स, तो ये सब सेंट्रल इफेक्ट में आते हैं। रीजनरेशन सब सेंट्रल इफेक्ट में आते हैं। तो सेंट्रल इफेक्ट समझने के लिए जरा कठिन है, क्योंकि वे सूक्ष्म है, सटलर है, लेकिन वो बेनिफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब ये नहीं कि स्थानीय परिणाम या जो सह परिणाम है एसोसिएटेड इफेक्ट वो इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसी बात नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेंट्रल इफेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि वो अपने रैशनल माइंड को अपील नहीं करते, जैसे मैं इधर बेंड करूं तो जो भी मुझे इधर खिंचाव मिलता है मुझे तुरंत ध्यान में आ रहा हूँ, अच्छा खिंचाव मिलता है, हाँ इधर की चर्बी कम हो जाएगी और समथिंग लाइक दैट, उधर का ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा, मसल टोन हो जाओगे या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ये मेरे बुद्धि को समझ रहा है। लेकिन
डीप लेवल पे जो मैंने सेंट्रल इफेक्ट की बात की वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर योग के प्रैक्टिस के ये यदि इफेक्ट है तो योगिक क्रिया के भी इस प्रकार के इफेक्ट है। तो वही है जो लोकल और एसोसिएटेड इफेक्ट क्रिया के होंगे, वो होंगे फिजिकल इफेक्ट या फिजियोलॉजिकल, बराबर है ना, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। और जो सेंट्रल इफेक्ट होंगे वे होंगे साइकोलॉजिकल। सीधी सी बात, जो आज अपना मुख्य विषय है। तो एक एक क्रिया की ओर धीरे धीरे आ जाते। जो जैसा पहले हमने कहा कि 6 प्रकार के मुख्य कैटेगरीज है, उसमें एक कैटेगरी है नेति, बराबर है। नेति मतलब एंटीरियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित जो भी क्रिया है उसको नेति कहा है, नाक से संबंधित। जो पारंपरिक सूत्र नेति बताया गया था, एक ही क्रिया उन्होंने डिस्क्राइब की थी। आधुनिक काल में जैसे मैंने बताया कि रबर नेति और उसमें एक वेसन नेति भी होती है दोनों बाजू में, फिर जल नेति, ये सब क्रिया आ गए हैं। जो कपालभाति क्रिया थी उसमें उन्होंने 2 प्रकार के, एक वातक्रम कपालभाति जो सामान्य रूप से कपालभाति करके लोकप्रिय है, लेकिन दूसरे एक जलक्रम कपालभाति है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। मतलब हवा से पूरे शुद्धि क्रिया की खासियत यह है कि पंचमहाभूतों के इस्तेमाल से ही अपने अंदर के बॉडी को साफ करते हैं, इंटरनल कैविटीज या नाड़ी, ये उसकी खासियत है। वही कुछ द्रव्यों का, तैलों का, औषधि द्रव्यों का उपयोग किया, तो वो पंचकर्म में होता है। आयुर्वेद में उसी प्रकार के पंचकर्म है, नस्य, वमन वगैरह, और उसमें बहुत कुछ सिमिलरिटी है। हालांकि कुछ नॉन सिमिलरिटीज भी है, उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, समय मिलेगा तो उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। लेकिन जो हवा है, पानी है, या कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि या आकाश तत्व है, उस प्रकार से जो 5 तत्व अपने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उनका ही उपयोग अलग अलग ढंग से इन अलग अलग क्रियाओं में किया जाता है, ये उसकी खासियत है। तो अ, हवा से अपने साइनसेस को साफ करने वाले को वातक्रम कपालभाति कहा, और वही पानी से किया तो उसको जलक्रम कपालभाति कहते हैं। तो मुंह में पानी लेके नाक से निकाला तो उसको बोलते हैं शीतक्रम, और नाक से लेके मुंह से निकाला उसको व्युत, व्युत मतलब उल्टा, उसको व्युतक्रम बोलते हैं। तो ये करते समय इधर नेजोफेरिंग बंद करते हैं बहुत हद तक, 90 मोर देन 90%, इसे सित करके आवाज आता है, इस करके सित क्रम करके नाम गिरा, उल्टा करके विक्रम करके नाम दिया है। तो ये जल क्रम कपालभाति का हिस्सा है। तो पारंपरिक ग्रंथों में जो नाक के मार्ग को साफ करने वाले 2 ही क्रिया थे, सितक्रम और विक्रम। तो आधुनिक काल में, क्योंकि सितक्रम विक्रम क्या होता है, जरा तंत्र सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है। एक बार आपने तंत्र अवगत कर दिया तो बड़ी आसानी से आप अच्छी तरह से उसको साफ कर सकते हो। इसलिए शुरू में लोगों के लिए तो एक पॉट बनाया गया, जलनेति पॉट, जिसके कारण आसानी से एक नाक से पानी लेके दूसरे नाक से निकालते हैं। तो उसमें का वैसे एक फिजिकल, मैं फिजियोलॉजिकल बोलता हूँ आपको कि फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, तो उधर का कचरा की फिल्टर है, फिल्टर ही गंदा है तो फायदा नहीं है। तो बीच में जो फिल्टर भी साफ करना चाहिए, फिल्टर साफ हो जाएगा, उधर के म्यूकोजल मेम्ब्रेन की इम्यूनिटी बढ़ेगी, तगड़ी हो जाएगी, उसका असर अपने आंखों के ऊपर भी होगा, अपने आंख का भी स्वास्थ्य सुधरेगा। इस प्रकार से और अपने अंदर भी, मतलब जो अंदर का इंटीरियर रेस्पिरेटरी, उसके ऊपर इनडायरेक्टली, देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है। उधर की भी कफ निकलने में मदद हो जाएगा, बार बार सर्दी होना, एलर्जी वो कम हो जाएगी, साइनसाइटिस वगैरह जो भी वो कम हो जाएगी, उसका इफेक्ट है। तो और नर्व्स भी क्लीन होते हैं, और उसका जो सेंट्रल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, एक प्रकार के स्वच्छता का अनुभव अंदर से, खुद को क्लीन होना, इसके अनुसार और शांति नहीं है, प्रसन्नता जिसको कहते हैं, वो इससे मिल जाता है। फिर रबर नेति या सूत्र नेति, यानी कि थ्रेड्स होते हैं, उसमें सूत्र में ज्यादा एडवांटेज कि वो पॉइजन को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो मसाज होता है जिसके कारण यू नो ये आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन बहुत तगड़ी बन जाते हैं। हालांकि ये पूरे कोरोना के दरमियान दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय के एक डॉक्टर केड़कर, उनका वो जो वीडियो था वो बहुत वायरल हुआ, जलनीति का क्या असर होता है। लेकिन एक सुनी, उन्होंने सिर्फ जलनीति की बात की, तो जलनीति कुछ भी नहीं, जलनीति की तुलना में सितक्रम विक्रम और फ्लशिंग है, और ये रबर नीति, सूत्र नीति और उसको तगड़ा बनाएंगे। तो
यदि शुद्धि क्रियाओं के इस कोरोना को प्रिवेंट करने के या क्यूर करने के जो भी असर है उसकी चर्चा करने हम लगेंगे तो जलनीति कुछ भी नहीं बोलते हैं, किस पेड़ की पत्ती ये तो शुरुआत है। लेकिन हालांकि वो एक डॉक्टर है और इसलिए वो डॉक्टर जब बोलते हैं तो वो वायरल हो गया, वो बात अलग है। अच्छी बात है कि उस कारण से योग का महत्व या शुद्धि क्रियाओं का महत्व समाज को समझा, लेकिन वो जलनीति कुछ भी नहीं है यदि हम बाकी इन क्रियाओं के असर की बात करें, खास करके इम्यूनिटी बढ़ाने की दृष्टि से या कफ विकार को नियंत्रित रखने की दृष्टि से। तो रबर जल नीति में जल तत्व है, तो रबर या सूत्र नीति में पृथ्वी तत्व है और इसके कारण जो मर्दन होता है, मसाज होता है और तगड़ा बनता है म्यूकोजल मेम्ब्रेन। और वही जो लाभ कहे थे शारीरिक और मानसिक स्तर पर उसके कारण मिलते हैं, साइनसाइटिस जैसे तकलीफों में भी प्रिवेंटिव क्यूरेटिव इस दृष्टि से बहुत लाभदायक होता है। फिर अब हम नेति के बाद दूसरी जो कैटेगरी है धौती की ओर चले आते हैं। धौती मतलब धोना। और पूरे जो 6 कैटेगरी है षटक्रिया, इसको षटक्रिया इसीलिए छठ यानी कि 6 षटकर्म बोलते हैं। तो धौती सबसे बड़ी कैटेगरी है, मतलब उसमें जो डिवीजन सब डिवीजन है वो सबसे ज्यादा है। तो मुंह से लेके गुदा तक जितने भी एरिया धोने के अलग अलग क्रियाएं हैं, पूरे का पूरे धोने के कुछ क्रियाएं हैं, पूरे लोकल के लिए कुछ क्रियाएं हैं। तो दंत धौती कहा है, यानी कि दंत मूल धौती, जीवा मूल धौती, कर्ण रंध्र धौती और ये कपाल रंध्र धौती, इस प्रकार का वापस सब डिवीजन है उनका। फिर रुद्ध धौती यानी कि अपने फेरिंग से लेके अपने जठर तक, इसोफेगस एंड स्टमक तक जो भी है उसको रुद्ध धौती का है। जैसे वमन धौती है उसमें और एक व्याघ्रकर्णी गजकर्णी उस प्रकार के और डेवलपमेंट है आगे के। दंड धौती है, वस्त्र धौती है मतलब वस्त्र से साफ, इस प्रकार के क्रिया। आगे के पूरे अंदर वाले जो है अंतर धौती कहते हैं। पूरे अग्नि से कहते हैं वन्नीसार कहा है, अग्निसार। या फिर हवा से किया तो शुष्क गजकर्णी कहा है। और फिर पानी से किया तो वारिसार शंख प्रक्षालन का है। मतलब एक 20 से 30-40 गिलास तक नमक का पानी पिया जाता है। एकदम नहीं पी सकते, 5-5 गिलास पी के कुछ क्रियाएं करते हैं और पूरा साफ हो जाता है। जैसे पेशाब होता है वैसा क्रिस्टल क्लियर पानी एनएस से निकलता है। इट्स अ वेरी पिक्यूलियर एक्सपीरियंस, नो पैरेलल एक्सपीरियंस टू दैट। तो जितने भी कैस्टर ऑयल होंगे या आजकल डॉक्टर जो भी साफ होने के लिए कुछ गोलियां देते होंगे उसमें इतना साफ नहीं होता है। ये पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी निकल जाता है, उसको शंख प्रक्षालन कहते हैं। शंख यानी कि आपको मालूम है तो स्पाइरल होता है। इस प्रकार से अपना इंटेस्टाइन लंबा होता है, जब तक 22 फुट लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और 6 फुट लंबा अपना लार्ज इंटेस्टाइन होता है। वो सबसे गुजरते हैं, पूरे साफ कर डालता है, करके उसको शंख प्रक्षालन क्रिया बोला है। और उसी प्रकार से फिर लास्ट इससे के गणेश क्रिया, मूल शोधन क्रिया, लास्ट जो एरिया होता है, ऐसे नाम दिए हैं। तो बहुत बड़ा वो डिवीजन सब डिवीजन है, उसकी ज्यादा चर्चा अभी करने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन ओ एरिया उस दृष्टि से साफ हो जाएगी। जैसे एसिड है, एसिड है तो वमन धोती से तुरंत तो बाहर निकलेगा, ज्यादा एसिड अंदर रहेगा नहीं। वमन करने से एसिडिटी की प्रवृत्ति बंद होगी ऐसी बात नहीं। एसिडिटी की प्रवृत्ति के मूल कारण दो है, एक है मन स्ट्रेस और दूसरा है गलत आहार। एसिड किधर से आता है? इधर कोई एसिड बनाने की फैक्ट्री लगाई क्या? आप जो बाहर से एसिड लेते हो वही बाहर निकलेगा। तो अभी मेरे निसर्गाहार किताब का मेंशन हुआ था तो उसमें फिर वो बातें कही गई है कि वो कौन से आहार है जो अंदर एसिड बढ़ाएगा, वो कौन से आहार है जिसके कारण अल्कली बढ़ाएगा। और एसिड बढ़ाने वाले एसिड को आप अपने आहार को कम करोगे या उसको पूरी तरह से छोड़ दोगे, अवॉइड करोगे और अल्कली बढ़ाने वाले आहार को लोगे तो अपने आप वो एसिडिटी का उपचार होगा। तो कोई एंटासिड लेना ये कोई उपचार नहीं है एसिडिटी का। तो एक तो मन शांत रखना और गलत आहार को बंद करना और सही आहार को रखना, ये सही। क्योंकि योग में जड़ों का विचार होता है, ऊपर ऊपर वो एलोपैथी के मेडिसिन में विचार होता है, उसको सिम्टम को दबाने का जो टेंडेंसी होती है या जो विचार होता है वो एलोपैथिक की खासियत है। लेकिन योग में रोग के जड़ों में जाके जड़ों से रोग को निकालना और फिर स्वस्थ बनना, ये योग का एक अप्रोच रहा है। तो इसी दृष्टि से उसके सिवा आपका डाइजेशन बहुत सुधरेगा वमन धौती से। और केवल ये तो
प्रक्रिया जो है पानी पी के उल्टी करना, मेनली दी डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन दिस अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लेकिन इट हैज गॉट अ इम्पैक्ट ऑन, वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका कफ पूरा बाहर है कि तुरंत निकल, आपको फील होगा, वो नॉस्ट्रिल बंद है तो तुरंत, जिन्होंने भी वमन किया होगा उन्होंने खुद अनुभव किया होगा, नहीं करोगे, नहीं किया होगा तो आगे करिए तो करोगे अनुभव कि तुरंत आपका नाक खुल जाता है, अंदर कफ है तो निकल, खास करके सर्दी होती है तो आने वाले एक हफ्ता भर बहुत कफ का दौर होता है, उसमें आप कंटिन्यूअसली एक 4-5 दिन वमन धोती करोगे तो काफी हद तक आपका कफ का तकलीफ कम हो जाएगा। फिर उसको परहेज भी रखना जरूरी है, ये दरमियान आप गलत खाओगे तला हुआ और सब दही वगैरह ये सब चीजें वो खाओगे तो निश्चित रूप से गलत असर होगा। तो एक दौर पे एक गलत खाना बंद होना चाहिए और इस प्रकार के क्रिया करनी चाहिए, तो कफ का कोई ज्यादा तकलीफ होगी नहीं आपको, 4-5 दिन के अंदर आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन लोग परहेज रखते नहीं है, जो नहीं खाना वो खाते हैं, दही खाते हैं, पता नहीं समोसा खाते हैं, पेप्सी पीते हैं, क्या क्या पीते हैं, फिर बोलते हैं 1 महीना हो गया कफ अच्छा हो, कैसा होगा? आप कफ अच्छा होना ऐसा बर्ताव ही नहीं कर रहे हो, आप कफ को विकृत बनाने वाला बर्ताव करते हो, तो फिर कफ विकृत होगा ऑब्वियसली। बाद में वापस सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, एलो कफ आता है, इन्फेक्शन होकर फिर बुखार आता है, ऑल दैट कॉम्प्लिकेशन, आगे जाके निमोनिया तक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, आपको मालूम है। तो ये बातें कहने का मतलब ऐसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके ऊपर उसके सीधे सीधे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? बाहर फेंकना, बाहर फेंकना, ये जो वृत्ति है अंदर, किसको बाहर फेंकना है? निगेटिविटी को बाहर फेंकना है, नकारात्मकता को बाहर फेंकना है, षड्रिपियों को बाहर फेंकना है, मतलब जो जो चीजें गलत है उसको बाहर फेंकने की एक, हमें मालूम नहीं पड़ता है ये साइकोलॉजी, लेकिन ये प्रक्रिया चालू होती है उधर। तब जैसे लोकल और एसोसिएटेड इफेक्ट है, उसी प्रकार से सेंट्रल इफेक्ट है हर चीज का, क्रियास आर नॉट एक्सेप्शन टू दैट। तो वुमन का सेंट्रल इफेक्ट है कि अंदर के निगेटिविटीज, वो निगेटिव इमोशंस हो, जो कुछ भी हो, उसको बाहर फेंकने की एक प्रक्रिया चालू होती है। किसी के बारे में अपने को एक रिलेशन में कड़वाहट है, वी हेट दैट पर्सन, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि किसी को हेट करना एक योगी का लक्षण नहीं है, पर उसके गलत असर हम पे ही होते हैं। जब जो वो दिखेगा आप उसको हेट करोगे, जब जब उसको देखोगे हेट करोगे, तो आपके दिमाग के अंदर कुछ टॉक्सिन्स बनोगे और आखिर धीरे धीरे इस टॉक्सिन्स का गलत असर अपने स्वास्थ्य के ऊपर दिखाई देगा। इसलिए किसी के पास शत्रुता न रखना, ये योग की फिलॉसफी है। सभी के साथ मित्रता जिसको बोलते हैं, सभी के बारे में अच्छी सोच, पॉजिटिविटी। तो जितने पॉजिटिविटी हम अपने दिमाग में रखोगे उतने अच्छे केमिकल्स दिमाग में बनेंगे, उतना अपना स्वास्थ्य ठीक होगा। ये सीधी सी बात है। तो मैं मुक्ति की बात नहीं करता हूँ, कैवल्य की नहीं बात करता हूँ, मैं भी स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। वो सबसे पहले, क्योंकि आदमी स्वस्थ होगा तभी जाके वो मुक्ति पाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो अंतराय बताए हैं, चित्त विक्षेप, उसमें सबसे पहले व्याधि कहा उन्होंने, आदि और व्याधि जो मूल कारण है। तो यदि आदमी व्याधिग्रस्त है तो योग क्या करेगा, उसको आगे क्या बोलते हैं, विकास कैसा होगा उसका, बराबर है। तो यदि मुक्ति पाना है तो सबसे पहले स्वस्थ होना है, व्याधि को लेके आप मुक्ति की ओर नहीं जा सकते हो, समाधि की ओर नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। इसलिए तो ये वमन अंदर की गंदगी को, मेंटल नेगेटिविटी इमोशंस को, जो षड्रिपु हम बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, बराबर है ना। जैसे महात्मा गांधी जी ने एक बार पूछा था, देयर इज सफिशिएंट फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। तो ग्रीड के लिए कोई दवा नहीं है, उस प्रकार से। तो मन जितना साफ होगा, संन्यास का है हमारे, संन्यास क्या होता है, षट न्यास, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इन 6 का जिसने नाश किया वो सन्यासी हो गया। सन्यासी का कुछ अलग ही डेफिनेशन हमारे दिमाग में, भगवी कफनी पहना, कुछ दाढ़ी, मतलब ये एक्सटर्नल डेकोरेशन है, दैट इज नॉट सन्यास। सन्यास अंदर की वृत्ति है, मन से, सन्यास का संबंध मन से है, इट इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रादर देन द आउटर डेकोरेटिव और फिजिकल एस्पेक्ट। इसलिए जो लोग बाहर से ही सन्यासी दिखाते हैं, कफनी पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, आत्मा परमात्मा ऐसी बातें करते, बाद में जेल में जाके बैठते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बात कर रहे थे, बाहर का डेकोरेशन उनका सन्यासी का था, अंदर की वृत्ति नहीं थी। महर्षि पतंजलि ने योग चित्त वृत्ति की बात की है। तो योग का संबंध है
संन्यास का संबंध है वो चित्त के वृत्ति से है, वो बाहर के डेकोरेशन से नहीं है। योगी बाहर से नहीं दिखता है, योगी अंदर से होता है, होना चाहिए। तो उस दृष्टि से ये वमन धोती का ये सेंट्रल इफेक्ट की, साइकोलॉजिकल इफेक्ट की हम बात करते हैं। दूसरी है वस्त्र धोती। वस्त्र मतलब कपड़ा खाते हैं, 11 फीट 22 फीट 33 फीट तक लंबा कपड़ा खाने का, कॉटन स्ट्रिप होता है, अंदर गिलते हैं फिर उसको बाहर निकालते हैं, तो उसको वस्त्र धोती कहते हैं। ऑब्वियसली एक कॉटन होने के कारण उसके लिए जैसे मैन में वोमन में एसिड फेंकता है देखा, उसके साथ में और भी अंदर जो भी पॉइजन होगा उसको खींच लेने की प्रॉपर्टी वस्त्र में होती है, तो एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। और ये वस्त्र अंदर जाएगा ऐसा पड़ा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल अंदर के मसल्स तुरंत, एक यांत्रिक उत्तेजना होती है, फिजिकल स्टिमुलस, तो तुरंत अंदर के अपने मसल्स होते हैं ना, वे कांटेक्ट होना चालू होते हैं। जैसे वस्त्र का आप अंदर अंदर चला जाता है वस्त्र, तो पूरे एक्सोफेगस में और आपके स्टमक में उसका ऐसा मसाजिंग होता है चारों ओर, जिसके कारण उधर के ग्रंथियां जो है ना, ग्लैंड्स, ये उत्तेजित होते हैं, उसकी टोन मसल बढ़ती है, तो ऑब्वियसली उसका कार्य और सुचारू रूप से होने लगता है डाइजेशन का। और कुछ पॉइजन है तो उसको खींच लेता है, क्योंकि कॉटन में एक प्रॉपर्टी होती है खींच लेने की। तो उस दृष्टि से अनेक प्रकार के फिजियोलॉजिकल और फिजिकल उसके बेनिफिट्स हैं। इन शॉर्ट आपका डाइजेशन बहुत अच्छा सुधरेगा, और एसिड को स्टिमुलेट करके वो निकाल के एसिड का लेवल कम करने में मदद करेगा। मतलब तुरंत इफेक्ट होगा कि एसिड थोड़ा बढ़ गया, इसलिए वस्त्र धोती करेगा। और जिनको हाइपर एसिडिटी है तो आखिर में वमन जरूर करें, क्योंकि वस्त्र धोती आपने कर दिया तो ग्रैंड स्टिमुलेट हो गए, तो अंदर एसिड बढ़ेगा। खास करके जिनको एसिडिटी है, अंदर जिसका बैलेंस है उसको एसिड नहीं होगा। एसिड किसको होता है? जिसका एसिड ज्यादा है, इसलिए एसिडिटी होती है। सीधी सी बात, ध्यान में रखिए ये तत्व। तो जिसकी एसिडिटी अंदर ज्यादा है, इम्बैलेंस है, और वो यदि वस्त्र धोती करेगा तो ग्रंथि स्टिमुलेट होने के कारण उसको तुरंत एसिड होगी। तो एट द एंड कभी भी पूरे अपने जो भी 4-5 क्रिया मान लीजिए एक दिन आपने सुबह कर दी, तो आखिर में आपको अमन करना चाहिए, ताकि पूरा एसिड बना हुआ निकालना चाहिए। और फिर एक 20 मिनट के बाद आप कोई फल वगैरह खाओगे, कभी भी क्रिया करने के बाद सबसे पहले फल खाना चाहिए। ऐसा तो आदर्श ऐसा है कि पहला ब्रेकफास्ट फल का ही होना चाहिए निसर्गहार के फिलॉसफी के अनुसार। लेकिन कम से कम जब हम क्रिया करोगे और सिर्फ वड़ा पाव खाओगे तो वाटी लगेगी ना। तो आपने क्या पाया, किस लिए क्रिया किया फिर? इसलिए क्रिया करने के बाद, खास करके वस्त्र धोती जैसी क्रिया करने के बाद आखिरी में वमन जरूर करें, उसको समाप्ति करने के। ओम शांति शांति बोलते हैं, जैसे यज्ञ विधि को शांत करते हैं। जैसे आयुर्वेद ने कहा आखिर में दोपहर के खाना खाने के बाद हमें तक्र तक्र यानी कि ताक पीना चाहिए, ऐसा बोला है। तक्र पिया तो कुछ बंद हो गया, मैनहोल बंद, ओम शांति शांति। बराबर है। तो उसी प्रकार से ये वमन करना, और वमन करने के बाद एक 20 मिनट के बाद आप कोई फल खाओगे तो आपको कोई ये नहीं, तो लोगों को क्या होता है, क्रिया करने के बाद उनको एसिड होता है, जोरों से सर फटने लगता है, बोलते क्रिया अच्छा नहीं है, मुझे क्रिया जचता नहीं, जमता नहीं, ऐसा कुछ लोग अज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं, जमता नहीं, सबके लिए क्रिया जमेगी, अच्छी है, उसके लाभ और केवल लाभ ही होंगे, लेकिन गलत ढंग से करोगे ऑब्वियसली उसमें इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इस वस्त्र धोती का, या दूसरा होता है दंड। वस्त्र में एक एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जब उल्टी आएगा तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन बॉडी को बाहर फेंकेगा। लेकिन धीरे धीरे आप शरीर और मन को क्या कर रहे हैं, टेम कर रहे हैं, सिखा रहे कि उसको उसके एक्सेप्ट करना। ये सेंट्रल इफेक्ट है। तो उल्टी होना बंद हो जाएगा। पहले उल्टी हो रही थी, अभी नहीं हो रही। इसलिए शुरू में दंड धोती सीखना जरूरी है, क्योंकि दंड में क्या होता है, उसको जब तक आप पकड़ के रखोगे, भले आपको उल्टी आ गई, जब आप उसको नहीं छोड़ोगे वो बाहर नहीं आएगा। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे आप अपने बॉडी को, मन को क्या कर रहे हो, टेम कर रहे हो, सिखा रहे हो। फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसमें हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, और यू बी एबल टू एक्सेप्ट इट। जैसे पेड़े को एक्सेप्ट करते हैं जिस आसानी से, उसी आसानी से हम दंड या वस्त्र जैसे फॉरेन ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने लगेंगे। ये साधना है, ये अभ्यास है। मतलब हमारे कुछ जो इनवॉल्यूंटरी ब्रेन के सेंटर से उस पर वॉल्यूंटरी नियंत्रण आता है, वही तो योग है। और सिद्धि क्या होती है, उसी को सिद्धि कहते हैं, बराबर है, शुरू में। ओके, तो धीरे धीरे आप उसको एक्सेप्ट करते हो। तो एक फिजिकल लेवल पे नहीं है, उसके लाभ तो होंगे ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया क्या लाभ होते हैं डाइजेशन की दृष्टि से, या जो बहुत कफ निकलने के लिए वस्त्र धोती, दंड धोती बहुत लाभदायक है। खास करके अस्थमा पेशेंट है, उनको बहुत ही ये लाभदायक पाया गया है।
ऐसा तो मेडिकल साइंस में अस्थमा किसी को है वो नहीं ठीक होगा ऐसा मानते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्रिया हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो अस्थमा जैसे बीमारी भी ठीक हुए हैं, ऐसे रिपोर्ट्स है। इतना उसका प्रभाव होता है मन और शरीर दोनों का। तो मैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि मन के असर की हम बात कर रहे थे कि उसको स्वीकारना एक योगिक फिलॉसफी है। तो वो जो स्वीकार, परिस्थितियों को स्वीकार करने की जो मन की एक प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देता है, वो उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट हमें मिलता है। जैसे मुझे बताइए डिप्रेशन क्या होता है? तो डिप्रेशन अपने मन का ही खेल है। परिस्थितियों को स्वीकार न करना, रिवोल्टिंग द सिचुएशन लेट्स टू डिप्रेशन। और डेफिनेशन नहीं डिप्रेशन का कुछ भी। जब हम जो भी परिस्थितियां हैं उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तब जाके मन उसके खिलाफ रिवोल्ट करता है, एंड दैट इज नथिंग बट डिप्रेशन एंड सच साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। तो हम फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वे लोग आपको कुछ गोली देते हैं, सोने के सेडेटिव बोलते हैं, तो उपयोग नहीं ना उसका, क्योंकि डिप्रेशन का कारण कौन है? मेरा मन है। यदि मेरा मन डिप्रेशन का कारण है तो मुझे काम मन के ऊपर करना पड़ेगा। वो एक गाना है ना, मेरे आंगन में तेरा क्या काम है, बराबर। या दूसरा एक कहावत है कि आग लगी है रामेश्वरी नामक गांव में और आपका फायर एक्सटिंग्विशिंग क्यों क्यों करके सोमेश्वरी नामक गांव में जाके पानी मार रहा है, उपयोग है क्या उसका? जिधर आग लगी है उधर जाके पानी मारो ना भाई। दूसरे गांव में जाके क्यों पानी मार रहे हो? उस प्रकार से यदि मेरा मन डिप्रेशन के लिए कारण है तो मेरे मन को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, मुझे मन को उसको स्वीकार करने के लिए मोल्ड करना पड़ेगा, एंड दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो गोली लेके क्या करोगे? और ये गोली लेके कितने लोग का डिप्रेशन अच्छा हुआ है, एक संशोधन का, रिसर्च का, सर्वे का विषय है। उल्टा उल्टा होता है, इट्स ए विशियस साइकिल। वे ज्यादा लोग बेचारे फंस जाते हैं। इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाके गोली लेने के बजाय साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, सत्संग करें, क्योंकि सवाल मन का है, रोग की जड़ें मन में है, तो उपचार मन का करें। और गोली का कोई काम नहीं उसके अंदर। उस प्रकार से वस्त्र धोती, दंड धोती, ये जो क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए आपको टेम करता है, मजबूर करता है। उस प्रकार के उसके लाभ होते हैं। तो शंख प्रक्षालन में तो पूरा साफ हो जाता है, जिनको कब्ज है वगैरह उनके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि किडनी के लिए भी वो एक क्या बोलते हैं, जैसे किडनी जब फेल होती है उनको वो ये दिया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अ, डायलिसिस। हाँ जी, डायलिसिस। या डायलिसिस। तो थैंक यू। तो डायलिसिस जैसा कुछ हद तक वो काम करता है। ये तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो गया, और मेंटल लेवल वही सफाई की बात है। तो उसी प्रकार से दूसरे जैसे क्रिया है, एक बस्ती करके क्रिया है। बस्ती लाके योगिक एनिमा, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उनको डॉक्टर बोलते हैं बार बार एनिमा मत लो, क्योंकि एनिमा में क्या होता है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब आपका पैसिव ऑलरेडी पैसिव हो गया है वो, इसलिए कॉन्स्टिपेशन है, साफ नहीं होता है कि उसमें ताकत नहीं है। खुद का मल हर रोज बाहर फेंकना अपने का काम है ना, दूसरे का किसी का थोड़ा काम है। इसलिए बोलते हैं दम होना, बोलते हैं। जरा नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड है, गांड में दम होना। हाँ, तो आप समझ रहे हो, क्योंकि मेरा अंदर का मल हर रोज बाहर फेंकने का दम मेरे अंदर होना चाहिए। जिनके पास वो नहीं है उनको कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। उसके कारण अलग अलग है, पानी कम पीते होंगे आप, गलत आहार खाते होंगे, चिकट चिकट सब मैदा खाते होंगे, फल और सब्जियां नहीं खाते होंगे, फाइबर्स, और मसल को अच्छा एक्सरसाइज या जो भी योगिक प्रैक्टिस, टोन बढ़ाने के प्रैक्टिसेस नहीं करते होंगे। आहार विहार निद्रा, 31 सूत्री आयुर्वेद ने बताया, वही बात है हर जगह पे स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो उसमें उसके जड़े हैं बस। तो उस दृष्टि से ऑलरेडी पैसिव है या आलसी हुआ है आपका मसल, ये आदत थे और आलसी बनेगा, इसलिए बार बार एनिमा मत लो ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये जो बस्ती है इसको योगिक एनिमा का है, ये बिल्कुल उल्टा है, उसका रिजर्वर नीचे है, ऊपर नहीं है। क्या करते हैं, अपने एनस के अंदर एक पाइप डालते हैं और टब में पानी रखते हैं, दूसरी उसकी एंड टब में डुबाते हैं, और ऐसा करके नवली और उड़ियान बंद करते हैं, तो नीचे से पानी ऊपर खींचा जाता है और फिर उसको साफ कर देते हैं। तो उसकी आदत होने का सवाल ही नहीं आता है। ऑन दी कॉन्ट्री यू फर्दर एक्टिवेट योर सिस्टम। तो जिसको कब्ज की तकलीफ है वो ये बस्ती करेगा तो धीरे धीरे का कब्ज की प्रवृत्ति कम होने में मदद, हालांकि बाकी चीजें हैं
जैसे आहार गलत लेता होगा तो ये करके कोई फायदा नहीं। तो जब हम योगोपचार की बात करते हैं, समुचित जीवन पद्धति का ध्यान रखते हुए वो उपचार होता है। ऐसे इससे अच्छा होता है वो उतना करे और बाकी सब कुछ उल्टा पुल्टा करो। ये उसका मतलब नहीं है। फिर कपालभाति आपको मालूम है। तो कपाल बोलेगा तो आज मराठी या हिंदी में केवल फोरहेड है, लेकिन संस्कृत भाषा में और खास करके हजारों साल पहले उसका मतलब पूरा चेहरा है। कपाल का मतलब केवल फोरहेड नहीं है, द एंटायर स्कल और अदर द फेस, भांति भांति मतलब शाइनिंग। तो यानी कि आपका चेहरा सोने का बनेगा या चांदी का बनेगा, वही है जो काला गोरा है वो रहेगा। लेकिन अंदर के साइनस कैविटी साफ होने के कारण चेहरे पर तजेला आ जाएगा। ये फ्री ब्यूटी पार्लर आइटम है योग का। कोई फीस नहीं है, कोई केमिकल कॉस्मेटिक नहीं है, बस हर रोज करो कपालभाति और चेहरे पे लस्टर लाओ, तेज लाओ, चेहरे का सौंदर्य बढ़ाओ, ये उसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन लाभ केवल उतने हद तक मर्यादित नहीं है। साइनसिस साफ होने के कारण आपको साइनसाइटिस, बार बार सर्दी होना, कफ्यू का, आपका इम्यूनिटी वापस वही, कोरोना जैसी बीमारी होगी नहीं दुनिया में, होने दीजिए कोरोना। जो सही ढंग से अपने आहार विहार निद्रा रखेंगे उसको कोरोना की कोई डर नहीं। और अब इम्यूनिटी अपने वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कोई बोलते हैं वैक्सीन लेके भी किसी को कोरोना हो गया, ऐसे रिपोर्ट आज ही पेपर में आया है। लेकिन मैं बोलता हूँ वो छोड़ दीजिए, ये वैक्सीन कोरोना के ऊपर बहुत असरमंद है ऐसा मान लेते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कल और कोई कोरोना का भाई आएगा बोरोना, क्या किधर दौड़ोगे? तो ये वैक्सीनेशन ये कोई इलाज नहीं है, ये इलाज नहीं है। मराठीमध्ये बोलतो भित्र्या मागे ब्रह्म राक्षस। इसलिए अपने आप को अंदर से तगड़ा बनाए, वही फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल आज का जो विषय है। फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली अपने आप को तगड़ा बनाए, फिर कोरोना और फिर कोरोना के बाप को हमें डरने की जरूरत नहीं है। कल कोरोना का बाप आएगा। बराबर है ना, किधर भागेंगे? तो समझ लीजिए, सही रास्ता समझ लीजिए कि अपने एक कोरोना ने अच्छा किया, लोग थोड़े डरे, अभी वापस कितने डरे मुझे मालूम नहीं है। बीच में सब क्या बोलते हैं फास्ट फूड काउंटर सब बंद हो गए थे और लोग भी जाना बंद, थोड़ा परहेज रख रहे थे, फिर वापस पता नहीं कितना अभी वो लगाम छूट गया, तो अभी एकदम टूट पड़े होंगे। अरे कितने महीने हो गए रे वड़ा पाव खाया नहीं, चलो अभी टूटो। आता हाना समथिंग लाइक दैट। एनीवे, तो महात्मा गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में एक सुंदर वाक्य कहा था, यहाँ से रोगी योगी होके जाना चाहिए। मतलब क्या, बीमारी क्यों होते है? गलत रहन सहन के कारण अंदर पूरे विष हो जाते हैं, फिर उधर जाके 10-12 दिन हम घास फूस खा के पूरा साफ कर देते हैं और फिर अरे 12 दिन घास फूस के बिगड़ कुछ नहीं खाया रे करके फिर एकदम टूट पड़ते हैं। आता खा सॉफ्ट ड्रिंक आणि समोसा समथिंग लाइक दैट, फिर क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। मतलब जो पुण्य आपने 10 दिन में कमाया वो 6 दिन में गवाया, ऐसा हो गया। इसलिए एक बार आपने साफ कर दिया तो आगे गंदगी करने की प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। ये इसलिए क्या हो रहा उन्हें, यहाँ से रोगी योगी होके जाना। योगी मतलब क्या? योग चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब जिसके मन पर क्या आ गया? नियंत्रण आ गया, अपने टेस्ट बर्ड के ऊपर नियंत्रण आ गया। जो गलत खा के इधर आया था अब उन्होंने सब साफ कर दिया और आगे जाके वो गलत नहीं खाएगा। ऐसी अवस्था उसकी मन की आनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। दैट इज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ से रोगी योगी होके जाना चाहिए, इस प्रकार की उन्होंने बात की, मतलब जिसके ऊपर मन के ऊपर नियंत्रण आया। तो उसी प्रकार से ये जो मैं कपालभाति की बात कर रहा था कि पूरा आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, आंख का स्वास्थ्य भी सुधरता है और वही वापस अंदर के गंदगी को बाहर फेंकने की एक प्रवृत्ति बढ़ती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उसका ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड फेंका जाता है। प्राणायाम और कपालभाति एक दूसरे के विरोधी है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कुछ योग के क्षेत्र के तज्ञ भी कपालभाति प्राणायाम ऐसा बोलते हैं, लेकिन हालांकि ये गलत है, क्योंकि कपालभाति क्रिया है। अभी अभी मैंने कहा आपको, उस ग्रंथ में कहा है नव तिरबस्तिस तथा नेतिस्त्राटकम नवलिकम तथा कपालभाति चैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। कपालभाति को सीधा सीधा छठ क्रिया के कैटेगरी में डाला है, प्राणायाम बिल्कुल नहीं बोला है और उसके इफेक्ट बिल्कुल विरोधी है। कपालभाति से यदि सुपर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो प्राणायाम में उल्टा होता है, ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। और बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड अपने ब्रेन के कुछ सेंटर को स्टिमुलेट करता है और
हम उसका मेन इफेक्ट ज्यादा फिजियोलॉजिकल से साइकोलॉजिकल है प्राणायाम का, कि मन पर नियंत्रण, सांस के नियंत्रण के माध्यम से मन के ऊपर नियंत्रण लाना, ये प्राणायाम का उद्देश्य ये होता है। उसमें ऑक्सीजन बढ़ता नहीं है, हाँ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के जब ऑक्सीजन कम होता है तो जो भी ऑक्सीजन है उसको ज्यादा से ज्यादा वापरने की एफिशिएंसी प्राणायाम के कारण बढ़ती है। तो ध्यान में रखें, डायरेक्टली प्राणायाम के कारण ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है, लेकिन ऑक्सीजन की यूटिलाइजिंग एफिशिएंसी जो अंदर की मशीनरी अपने स्थूल से सूक्ष्म स्तर पर वो बढ़ती है प्राणायाम के कारण। तो कपालभाति में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है या अल्कलाइन है आपको मालूम है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होकर सोडा वाटर बनता है, बराबर ना, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं जिसको। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर फेंक रहे हो, 1 मिनट में 100 से 120 जब आप स्ट्रोक दे रहे हो, कितनी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आपने 1 मिनट में बाहर फेंका। जब आप नॉर्मल 15 या 18 सांस लेते हैं 1 मिनट में, तब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, और 1 मिनट में जब आपने 100 से 120 स्ट्रोक दे दिए तो कितनी बड़ी मात्रा में, कितना गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर फेंका, मतलब कितना एसिड आपने बाहर फेंका, इसका लाभ। इसलिए एक ही दम में आप 1000 स्ट्रोक देंगे तो इतना असरमंद नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा चक्कर आएगा, क्योंकि अल्कलाइन हो जाएगा, वो भी अच्छा नहीं है। ब्लड का पीएच 7.4 है, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन, ज्यादा अल्कलाइन भी होना अच्छा नहीं, ज्यादा एसिडिक भी होना अच्छा नहीं। तो आप कपालभाति के राउंड्स करोगे 100 150 स्ट्रोक्स के, 2 3 4 5 बीच बीच के राउंड्स करोगे तो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड में एसिड बाहर आएगा। इन अदर वर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं, एसिड, एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक। इस प्रकार से कपालभाति बड़ी मात्रा में एसिडिटी को, या एसिड, सभी रोग एसिड रिलेटेड है। सबसे पहले कफ विकार, बाद में पित्त विकार, बाद में वात विकार। तो कैंसर तक सभी बीमारियों का कहीं ना कहीं संबंध एसिडिटी से है। एसिडिटी इज नॉट, वी टॉक ऑफ हाइपर एसिडिटी अलोन, बट रक्त, अपने खून की, अपने सेलुलर एसिडिटी, बॉडी का जो टोटल एसिड अल्कली बैलेंस है, वो एसिड की तरफ जब झुकता है, और वो झुक रहा है आजकल बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट्स, ज्यादा झुकता है, और वही सब रोगों का कारण है। पहले कफ, बाद में पित्त, बाद में वात, और बाद में ट्यूमर और कैंसर। मतलब ये तो मूलाधार है। इसलिए कपालभाति का कितना असर इस प्रकार से एट द रूट कॉज ऑफ द डिजीज को हटाने में होगा, ये आप समझ सकते हो। और लंग कैपेसिटी हो तो आप तो समझ ही सकते हो, उसके बारे में अलग से मैं चर्चा करने की जरूरत नहीं। त्राटक करके एक क्रिया है जिसमें एक तो कैसे देखते हैं, उधर आंसू निकलते हैं, मतलब जो कुछ भावनाएं हैं, हेवी इमोशंस, आंसू निकालते हैं, रोने को आता है, या अपने को क्या बोलते हैं, हंसने को आता है, बराबर है ना, आंसू आते हैं जब ज्यादा हंसते हैं तो, हर्ष होता है तो कुछ डीप इमोशंस इस टीयर्स के द्वारा बाहर जाते हैं। इसलिए त्राटक मेडिटेशन नहीं है, कुछ लोग त्राटक को मेडिटेशन मानते हैं। त्राटक षट क्रिया है। वो ज्योत ध्यान अलग है, गैरण्य संहिता में स्थूल ज्योत ध्यान, सूक्ष्म ज्योत ध्यान ऐसा बोला है। तो ध्यान और त्राटक में हल्का सा फर्क है। ध्यान में केवल उसको देखते हैं, और इसमें आंखें पलके हिलाए बिगर देखते रहते हैं, और फिर आंसू निकल जाते हैं 2-3 बूंद, तो वो त्राटक है। तो दोनों में फर्क है, त्राटक अलग है, ज्योत ध्यान अलग है। हालांकि दोनों में आलंबन ज्योत है, दिखने में एक जैसा दिखता है, लेकिन दोनों एक नहीं है, दो अलग कैटेगरी है। एक मेडिटेशन है, दूसरा क्रिया है, शुद्धि क्रिया। एनीवे, तो वो अंदर के डीप इमोशंस बाहर जाने के लिए हमें मदद करता है। उस दृष्टि से मैं एक ही उसका उदाहरण देके आज का मैं स्पीच समाप्त करूंगा। आगे जाके कुछ सवाल है तो थोड़ा डिस्कशन हो सकता है 5-10 मिनट। तो कैवल्य धाम के जो रिसर्च चीफ थे, जब बहुत पुरानी बात है, 1970s की या उसके भी पहले की, तो डॉक्टर विनेकर रिसर्च चीफ थे कैवल्य धाम में। तो उनका बेटा अमेरिका में जाने वाला था, और 1961 की बात है ये। आजकल बहुत लोग जाते हैं यूएस में, लेकिन वो जमाने में बहुत कम लोग यूएस में जा पाते थे, बराबर है 96। तो उनका बेटा फॉर हायर एजुकेशन यूएस में जाने वाला था। तो कोई उसका दोस्त आया बाय बाय कहने के लिए, फिर उसको छोड़ने के लिए चला गया, और आते समय उसको रास्ते पे गाड़ी ने उड़ा दिया। तो आप समझ सकते हो कि जो बेटा, जवान बेटा कल अमेरिका में जाने वाला था, आज अकस्मात एक्सीडेंट से गया, तो क्या गुजरेगा, बराबर है। तो फिर कैवल्य धाम के सभी लोग, मतलब ये कहानी मुझे निम्बालकर गुरुजी ने बताई थी, तो ये सब उनके कलीग्स उनको मिलने के लिए गए,
गए तो वो बेचारी, उनकी जो औरत मतलब माँ है, वो बेचारी अभी आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का हादसा है, तो जोर जोर से रो रही थी। और ये जो आदमी है डॉक्टर विनेकर, वे कुछ नहीं, वे ऐसे हवा पानी की वगैरह बात करें, मतलब वो विषय को टाल रहे थे। अभी क्या होता है, एक होता है योगी, मतलब जिसको इमोशन का फर्क पड़ता ही नहीं है, और दूसरा योगी का प्रिटेंड करना, क्योंकि हम तो सामान्य लोग हैं ना, भले ही हम योग साधना करते हैं, हम योगी नहीं बने हैं, हम योग भोगी ही हैं, लेकिन थोड़े से अलग भोगी हैं। थोड़ा थोड़ा असर योग का हमारे ऊपर उस इतना ही फर्क है। एक मर्यादा के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। एक प्रापंचिक लोग है आखिर हम, एक बाप है वो, आखिर एक जवान बेटे का बाप है, ये कैसे भूल सकते हैं। तो वो योगी लोग कैसे रोएंगे, ऐसा समझ को दबाना चाहता था, वो इनहिबिट करना चाहता था अंदर अंदर, और बाद में 1 महीने में वो मर गए। बेटा गुजरने के बाद 1 ही महीने में डॉक्टर विनेकर का देहांत हो गया दुर्भाग्य से। और उनकी जो पत्नी थी वो बाद में अभी रिसेंटली वो गुजर गई। बाद में लगभग 18-20 बरस वे थी। क्योंकि हादसा जब हम रोते हैं तो निकल जाता है, तो उसी प्रकार से एक जो आँख का स्वास्थ्य सुधरेगा त्राटक क्रिया से, लेकिन मन के जो डीप इमोशनल पॉइजन्स है, उस आँसू के माध्यम से बाहर, खास करके हमारे सोसाइटी में पुरुष है ना, वो रोना नहीं चाहते, उनको लज्जा लज्जा अनुभव होता है कि लोगों के सामने रोएगा कैसा। हम बोलते भी हैं ना, अरे बेटे को, छोटे बच्चे को भी बोलते हैं, अरे तुम तो लड़के हो और लड़की जैसा क्या रोता है। यही हमारा संस्कार है ना। तो क्या आदमी है तो रोना चाहिए ना, आदमी को इमोशन होता है तो क्यों दबा के रखने का, बेटा हो या बेटी हो, पुरुष है या स्त्री हो, यदि इमोशंस है उसको खुले से निकलना चाहिए। लेकिन थोड़ा कंट्रोल औरतों से मर्दों का ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए औरतें कभी कभी उसको शस्त्र के रूप से वापरते हैं आंसुओं को। ये अलग विषय है। Anyway, तो तो किस प्रकार से साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस क्रिया के है, ये आप समझ सकते हो। हालांकि मैंने सभी क्रियाओं का जो 23 क्रिया घृण संहिता में उनका जिक्र है, उन सब हर एक क्रियाओं का मेंशन नहीं किया, जरूरत नहीं है इतना जो भी विवरण अभी हमने किया है। तो ये सब क्रियाओं का फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट किस प्रकार से होता है और आगे जाके योगी बनने के लिए अपने को उसकी मदद होती है, ये हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 5 ही मिनट बच गए। यस सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। एक मकरंद आफले करके हैं, उनका एक क्वेश्चन है, आज बहुत सारे योग शिक्षकों को चश्मा क्यों है? मुझे भी है, सही सही है। योग शिक्षक भी समाज से ही आता है, तो समाज में जो भी स्थितियां आज है उससे वो परे नहीं है। लेकिन समय की मर्यादा होती है। अभी योग शिक्षक खुद के लिए कितना समय देता है साधना के लिए, वो सिखा भी रहा है, बराबर है ना, क्योंकि उसको उसके विद्यार्थियों के पीक आवर का भी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब जो भी उससे